Hi all. So I'm Priyanka Anil Dhaka, an astrologer and tarot card reader, and today's session on parenting consciously with astrology is brought to you by First Cry Parenting, and I'm Priyanka Anil Dhaka. I'm telling you again. So how are you guys? So I'll just wait for a few people to join in, and let's start with the session, which is going to be a very interesting one today. Yes, I can see few people joining in, and I'm loving it. So it's about conscious parenting, and of course, as I'm an astrologer, as I have told you, and as few people would be knowing also that I practice this. So it's in connection to astrology, of course, and as this site, First Cry, and parenting through this. So this all is about love and care, and we are going to talk a lot about it, a lot about the parenting and how basically you can be a better parent when you knew few things about astrology. I am good, everyone. Hi Priyanka, hi Ankita, hi Priyanka. Yeah, there are so many Priyankas out here. Wonderful. I am Priyanka, and then I see few more over here. Awesome, great. Okay, so let's start with the session, and I would like to repeat that it is brought to you by First Cry Parenting, and the session we are putting light over here on parenting consciously with astrology with me, Priyanka and Aldhaka, and brought to you by First Cry Parenting. Great, guys. So, how are you all doing? And this is a great initiative of from First Try to getting us connected and making this time of where we can actually are staying at home. So this time is basically we are using it to the most through these live sessions, and I'm loving it all. So सबसे पहले अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं और हाई टू एवरीवन आई सी सो मेनी पीपल आउट हियर so when I am in the flow I'll not be able to say hi, and also a hi to everyone who is watching the session right now and who will see the session later as well. So a very wonderful prayers and love and blessings to each one of you एंड टू द चिल्ड्रन जिनके लिए आप ये सेशन देख रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो. सो व्हाट आई हैव प्लान फॉर दिस सेशन इज कि पहले मैं कुछ टाइम तक अपना टॉपिक की बात करूंगी, मैं आपको एक जनरल गाइडेंस दूंगी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है एज अ पेरेंट. एंड later on I'll be taking few questions also. That would be a gift from First Cry to all of you. So मैं हो सकता है किसी के questions को भी answer करूँ. So at the last of the session we'll be doing that as well. Okay. So guys, सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की तो पहले मन में हमारे क्या होता है. I'll start from the very beginning, and it's been, I think, more than 17 years that I have been practicing, and lot of parents I have interacted with. बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है. So मुझे जो आज का सेशन जो मैंने आपके लिए बनाया है वो मैंने ये सोच के बनाया है, एंड आई एम 100% श्योर कि आज के इस 1 घंटे के सेशन के बाद आफ्टर दिस 1 hour सेशन टुडे, एनीथिंग विच इज़ इन योर माइंड, जो आपने शायद मुझसे पूछी भी नहीं है, एनीथिंग विच इज़ देयर इन योर माइंड related to astrology, which is related to your child and which is related to your parenting, you will not have any doubts. आपके पास सब चीज़ों के आंसर होंगे. आपको पता होगा कि आपने किस टाइम पे किसी ज्योतिषी के पास जाना है या किस टाइम पे नहीं जाना है, और कैसे आप बिना जाए भी थोड़ा सा काम चला सकते हैं. सो दैट गाइडेंस आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू. सो द फर्स्ट थॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू दैट पेरेंट्स, हम सोचते हैं कि हम पेरेंट्स हैं. जितने भी लोग शायद यहाँ पे वॉच कर रहे होंगे, या तो वो पेरेंट्स होंगे, ऑलरेडी उनके बच्चे होंगे, या फिर एक, आई एम श्योर दूसरा टाइप बहुत कम मिलेगा मुझे यहाँ पे, दूसरा टाइप शायद ही होगा यहाँ पे, कि जो सोचते होंगे कि कभी हमको पेरेंट बनना है. सो यू नो दिस इज ऑल्सो अ वे. यू नो हम कहते हैं कि हम इस लाइफ में आए हैं. आई बी टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑल्सो बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सो जब हम अपनी पूरी लाइफ की बात करते हैं और जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, पेरेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ गृहस्थ आश्रम. जब हम गृहस्थी में होते हैं तब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं. तो हर एक किसी को गृहस्थ आश्रम से गुजरना चाहिए, और वो आपको एक एक फीलिंग देता है कंप्लीशन की, कि हाँ पहले मैं एक विमेन थी, या मैं पहले एक बॉय था, गर्ल बॉय से हम थोड़े से एडोलसेंट होते हैं, हम टीनेज में आते हैं, फिर हम एडोलसेंस में आते हैं, फिर हम एडल्ट बनते हैं, फिर हम पेरेंट बनते हैं, और फिर हम बेसिकली अपने वृद्धाश्रम या हम ओल्ड एज में चले जाते हैं. सो पेरेंटिंग इज अ थिंग विच रियली टीचेज यू अ लॉट.
पहले आप सीखोगे फिर आप आगे सिखाओगे। सो पहला थॉट जब हमारे दिमाग में आ जाता है कि यस आई एम रेडी टू हैव अ चाइल्ड, कंसेप्शन का थॉट जब हमारे दिमाग में आ जाता है, तो वहीं से एक आपके जो अंदर बायोलॉजी के लिए अगर बात करूं, तो एक पेरेंट वाले, एक केयर वाले, एक लव वाले हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड, इन योर हार्ट, that first thought in your mind, in your heart, so that makes you a parent itself। सबसे पहले आपके मन में जब एक इच्छा जागृत हो जाती है कि हाँ मुझे एक बच्चा चाहिए। अब बच्चा आप बायोलॉजिकली भी ले सकते हैं, आप एक अडॉप्टिव पेरेंट भी हो सकते हैं, आप किसी भी तरह से हो सकते हैं, एंड समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक पेरेंटिंग समवन हु इज जस्ट अ नेबर। सो वो एक थॉट आना ही आपको एक पेरेंट बना देता है। सबसे पहली बात ये, कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे यहाँ पे जो बायोलॉजिकली पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों के बारे में डेफिनेटली जानना चाहते हैं। या थैंक यू, थैंक यू हरमीत, आई कैन सी यू ओवर देयर, आई कैन सी गार्गी, आई कैन सी लॉट ऑफ मैनी पीपल ओवर देयर। सो हाई एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। सो दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड मेक्स यू अ पेरेंट। सो वहाँ पे ही सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाता है। आई विल बी आंसरिंग लॉट मैनी क्वेश्चन टुडे, जो कि मुझे मेरे करियर्स में मुझे पता है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड दैट इज रिलेटेड टू पेरेंटिंग। सो दैट इज अ कॉन्शियस parenting through astrology. Okay, so first thought which comes to your mind is already telling you that you are a parent. उसके बाद में सबसे पहले मन में आता है कि क्या टाइम है कंसीव करने का, किस टाइम मुझे कंसीव करना चाहिए। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। सो क्या टाइम है, बेस्ट टाइम ऑफ कंसेप्शन क्या है। तो सबसे पहले आजकल के लोगों के मन में नहीं आता, बट पुराने ज़माने में जबकि ये साइंस है, एस्ट्रोलॉजी जबकि ये साइंस है, तो उस टाइम में लोग कई बार ये पूछ के भी करते थे कि कब होगा मेरा बच्चा, कितने होंगे मेरे बच्चे, और क्या उनका जेंडर रहेगा, क्या उनका सेक्स रहेगा बच्चों का, कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। आज की डेट में भी हम एस्ट्रोलॉजर से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हाउ मेनी चिल्ड्रन विल आई हैव। सो पहली चीज़ तो ये कि आज की डेट में हम ये चीज़ आंसर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर मैं किसी को भी बोलती हूँ कि लुक मैन मेरे को तो आपके चार्ट में 8 बच्चे दिख रहे हैं, और आई सी 9 दिख रहे हैं, 4 लड़के हैं और 5 बेटियां हैं मुझे। सो आजकल ऐसा होता नहीं है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज कि आज की डेट में द थिंग इज वेरी मच इन योर कंट्रोल। अगर आप चाहोगे तो 2 करोगे, अगर आप चाहोगे तो 3 करोगे, मैक्सिमम इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखता करते हुए। सो आज की डेट में हम उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं कि कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल आई हैव, बट डेफिनेटली वी कैन आस्क लाइक वेदर दे विल बी हेल्दी, व्हाट विल दे बी डूइंग इन माय लाइफ, इन देयर लाइव्स। सो आपके अपने हॉरोस्कोप से ये चीज़ पता चल जाती है कि संतान पक्ष यानी कि बच्चों से आपको कितना सुख प्राप्त होगा या कितना आपको उससे स्ट्रगल मिलेगा। किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है बच्चों को लेकर, किसी की लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस होती है। दिस ऑल कैन बी सीन फ्रॉम योर हॉरोस्कोप। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ कमिंग टू द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कि जब आप कंसीव करने के बारे में सोचते हो तो सबसे बेहतर टाइम क्या होता है। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक हम लगा सकते हैं। अगर आपको अपने हॉरोस्कोप की जानकारी है, कि अगर आपको पता है कि मेरा हॉरोस्कोप में ये है, अगर आपने पहले किसी को दिखाया हुआ है, तो आप अपने दशा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब भी हम संतान पक्ष की बात करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर इंसान का, यहाँ मैं पेरेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं किसी ऐसे पेरेंट की बात कर रही हूँ जो अपनी लाइफ में एक बेबी चाह रहा है, सो वो सबसे पहले अपने 5th हाउस को देखेगा। हॉरोस्कोप में कुंडली में आपने देखा होगा घर बने रहते हैं, दे आर काइंड ऑफ डायमंड काइंड ऑफ शेप्स, स्क्वेयर रेक्टेंगल से बने रहते हैं। आपने कुंडली अगर पहले कभी देखी हो आपकी, सो वो घर रहते हैं। और जो आपका हॉरोस्कोप का 5वां स्थान है वो आपका संतान पक्ष का स्थान है, और उससे हमको ये देखना होता है कि बच्चा कैसा होगा, हाउ विल बी माई चाइल्ड। सो आप सबसे पहले, अगर आपका 5th हाउस आपके हॉरोस्कोप में एक्टिव हो रहा है, सो दैट इज द वंडरफुल टाइम फॉर द कंसेप्शन। सो दैट इज द आंसर फॉर दैट। उसके बाद में जब आपका कंसेप्शन हो जाता है, तो सेकेंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन विच आई फेस इज दैट व्हाट वुड बी द गुड टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर कोई सी सेक्शन के लिए जा रहा है, तो क्या हम टाइम वो हॉरोस्कोप से हम निकलवा सकते हैं, ज्योतिषी से क्या हम वो टाइम निकलवा सकते हैं। सो देन इट कम्स कि इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में, आज मैं आपको वही सब बातें बता रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सो मैं काफ़ी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मेरे पास बहुत लोग आए हैं जो कि चाहते हैं कि मैम हमको ना जाना तो मेडिकल वे में ही है, सी सेक्स वे में ही जाना है, सी सेक्शन ही करवाना है हमने। सो क्या हम टाइम ऑफ बर्थ, अगर डॉक्टर ने मुझे कुछ डेट दे दी है, तो क्या हम टाइम ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं अपने बेबी का। सो देन इट कम्स टू, ये डेफिनेटली आप कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ, या कोई भी और अच्छा एस्ट्रोलॉजर या कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपको ये चीज़ बता सकता है। सो
Yes, I am noting down the things. You have asked me, Jara Afsa, that 20th November is your birthday and you want to know that when will you have a baby. So, Jara, मैं आपका नाम तो नोट कर रही हूँ, but the thing is this कि without other details I won't be able to answer you. 20th November. So I will needing your time and place also, and hopefully I'll see that in comments. So when you will have a baby, so let's see if I will answer that also. ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ज़रूर वो टाइम निकलवा सकते हो। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि हम टाइम तो निकलवाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स से, लेकिन होता नहीं है वो। मतलब अगर मैंने आज की डेट में 200 लोगों को टाइम निकाल के दिया है कि ठीक है दिस इज़ अ गुड टाइम, आप जिस टाइम में अपनी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस दिनों में आप डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप उन्हीं दिनों में इसी टाइम पे अगर आपका डिलीवरी हो जाता है तो अच्छा रहेगा। यू नो कि यू विल, यू नो, इट विल बी अ बेटर चार्ट एज कम्पेयर टू अदर हॉरोस्कोप्स के कहीं पर भी हो जाए। लेकिन वो हुआ बहुत ही कम है। अगर मैंने 200 लोगों को दिया है तो शायद एक का हुआ होगा। सो दैट परसेंटेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि वो होता बहुत कम है, बिकॉज कुदरत की बात है ना। सो कुदरत ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर देती है कि जिससे कि वो चीज़ हो नहीं पाती, और होता वही है जिसको कुदरत सपोर्ट कर रही होती है। और हो सकता है कि अगर 200-500 में से किसी एक का हुआ तो हो सकता है कि उसका उसी टाइम पे होना हो। सो वो मुझे लगता है कि एक, आप अगर उतना चांस ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। अब उसके बाद में अब लोगों के मन में विचार आता है कि एस्ट्रोलॉजी, अगर उसका हॉरोस्कोप बनवाना है, बेबी आपका पैदा हो गया, कंसेप्शन हमने कर ली और उसके बाद हमारी डिलीवरी भी हो गई, और हो सकता है कि आपकी डिज़ायर टाइम पे हो जाए, और अगर डिज़ायर टाइम पे नहीं भी होती है तो भी बेबी आया है लाइफ में। सो हर एक कोई सोचता है कि कुंडली बनवानी है, क्योंकि सबसे पहले उस पर नाम रखना होता है कि नाम हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है कि नामाक्षर निकलता है। हमारी जो राशि है, राशि के अकॉर्डिंग अगर आप नाम रखते हो तो वो किसी भी के लिए लकी रहता है, राइट। सो वो हम सब ने सुना होगा। तो नाउ व्हाट हैपन्स कि हमने कुंडली कब बनवानी है, कुंडली किससे बनवानी है, सो वो सब थॉट्स मन में आने शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स के। सो नाउ द थिंग इज दिस कि किससे बनवानी है, दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके मन में वो पहले से ही किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रहे हो, और आप डेफिनेटली उनके पास जाइए और कुंडली बनवाइए। अब कुंडली का करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको नामाक्षर मिल जाएगा राशि के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे का जिस राशि में बर्थ हुआ होगा, उस राशि में जो नक्षत्र रहेगा उसका, उस नक्षत्र का एक पाया होता है। ये पंडित्स को और एस्ट्रोलॉजर्स को इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। आपको शायद सुनने में लग रहा हो कि अरे ये तो मैम पता नहीं क्या राशि नक्षत्र पाया बोलती जा रही हैं। सो इट डजेंट हैपन दैट वे कि वो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो आपको नॉर्मली उस चीज़ के लिए गाइड कर देंगे कि हाँ इनका आप इस अक्षर पे नाम लिख लो, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू और फॉर द चाइल्ड। सो नामाक्षर आपको मिल जाएगा। उसके बाद उस हॉरोस्कोप का क्या रखना है, उसके बाद उस हॉरोस्कोप को बस रख देना है। उसके बाद उस हॉरोस्कोप को नहीं यूज करना है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट टिप देने वाली हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हर टाइम, मी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मी बीइंग अ मदर, सो नॉर्मली क्या होता है, वी फील लाइक यू नो जस्ट ऑलवेज चेकिंग के कब अच्छा है कब नहीं है, क्या दान पुण्य कर दूं कि बच्चे की लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाए। सो हमको वो सब चीज़ें नहीं करनी है, राइट। I can see few more people joining in from my page. That's so lovely. Thanks for so many hearts and so many likes. Hi to everyone over here. Okay. सो सबसे पहले क्या होता है, जब हॉरोस्कोप बन गया, आपने नामाक्षर देख लिया, आपने बच्चे का नाम भी फाइनल कर दिया, आपने नाम भी रख लिया। अब उसके बाद में हमको क्या करना है कि हॉरोस्कोप को हमको रख देना है। वी जस्ट हैव टू कीप द हॉरोस्कोप अनलेस एंड अनटिल विच आई नेवर वांट कि बच्चे को कोई हेल्थ इशू आए। जब तक बच्चे को कोई हेल्थ इशू नहीं आता है तब तक आपको वो हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप साल में उस हॉरोस्कोप को, कुंडली को, या आप उसको जन्म पत्री को, आप जो भी उसको बुलाते हैं, आप उसको एक बार निकालें जन्मदिन के दिन, बच्चे के बर्थडे वाले दिन उस हॉरोस्कोप को निकालें, भगवान के आगे उसको रखें, उसकी पूजा करें, और भगवान से आगे की लाइफ को स्मूथ और अच्छा बनाने के लिए, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आप एक सिंपल प्रेयर करें। So this is what you have to do once the horoscope is made and the नामाक्षर is there. इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जिस जिस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ, राशि नक्षत्र से आपको नामाक्षर पता चल गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा पैदा होने पे हम नॉर्मली सोचते हैं किसी तरह का दान पुण्य करना हो, किसी तरह की दक्षिणा करनी हो। सो एनी काइंड ऑफ डोनेशंस विच यू हैव टू मेक विच विल बी फेवरेबल फॉर द चाइल्ड एंड हिज फ्यूचर। सो आप ये देखोगे उस टाइम कि कौन सी दशा चल रही है। देयर इज अ हॉरोस्कोप एंड देयर इज अ दशा गोइंग ऑन। सो आप ये देखोगे कौन सी दशा चल रही है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। सो उस प्लैनेट की, दे आर बेसिकली 9 प्लैनेट्स इन द चार्ट। सो 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो भी दशा चल रही होगी, 7 आर द सेम प्लैनेट्स विच आर अकॉर्डिंग टू द डेज इन अ वीक। संडे इज सूर्य, मंडे इज मून, ट्यूसडे इज मंगल जैसे कहते हैं तो मार्स,
वेंसडे इज बुध, दैट इज मर्करी, एंड देन थर्सडे इज बृहस्पति, सो गुरुवार सो कहते हैं, जुपिटर, एंड देन फ्राइडे इज शुक्र, शुक्रवार कहते हैं, सैटरडे इज शनि, सबको पता होगा कि शनि से सब लोग डरे रहते हैं, एंड देन दिस इज द 7 days, और इसके अलावा 7+2 कौन से, राहु एंड केतु। सो ये 9 प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। सो इन 9 प्लैनेट्स में से जिसकी भी दशा चल रही होगी, जिसका की मेजर पीरियड चल रहा होगा, उसके प्लैनेट के अकॉर्डिंग एक लिस्ट मिलती है। आप चाहो तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर लेना, चाहे जो आपके फैमिली पंडित होते हैं आप उनसे पूछ के ले लेना, और वो वाली एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होती है, कुछ 10-12 चीज़ों का लिस्ट होता है, आप सिंपली वो डोनेट कर देना। ठीक है। सूर्य का आपको डोनेशंस करने हैं शिव टेम्पल में संडे को, राइट। मंडे को आपको डोनेशंस करने हैं अगेन शिव टेम्पल में, बिकॉज सोमवार भी शिव जी का दिन बोला जाता है। ट्यूसडे को आपको हनुमान जी के टेम्पल में डोनेशंस करने हैं। वेंसडे को अगर आपको डोनेशन करने हैं, जो आप बुध बुध लग्न के लिए करेंगे, वो आपको करने हैं विष्णु जी के किसी भी रूप में। विष्णु जी के कौन से रूप हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, नरसिंह अवतार है, तो आप किसी भी रूप में आपको विष्णु जी का टेम्पल मिलता है, आप वहां पे कर सकते हो। थर्सडे इज बृहस्पति विच इज गुरु। सो थर्सडे में अगर आप, वैसे तो नॉर्मली आप चाहें तो थर्सडे का आप कर सकते हैं, आज साईं बाबा के टेम्पल में भी कर सकते हैं, बट अगर आप किसी गुरु के बिलीवर हैं, अगर आप किसी स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं, तो आप उनके वहां पे भी दान दक्षिणा थर्सडे की कर सकते हो। फ्राइडे को, फ्राइडे जब आता है हमारा शुक्र का, अगर बच्चे की दशा चल रही है और आपको शुक्र का दान करना है, तो वो आप करोगे गॉडेस के टेम्पल में, देवी के टेम्पल में। अब देवी लक्ष्मी भी हो सकती हैं, वैष्णो देवी हो सकती हैं, काली माता हो सकती है, एनी फॉर्म ऑफ फीमेल गॉडेस, तो आप फ्राइडे को उनका दान करोगे। सैटरडे को अगेन या तो शनि महाराज का या फिर आप हनुमान जी का करोगे। दिस इज हाउ यू विल डोनेट। अब राहु केतु फिर से शैडो ग्रह हमारे हैं, छाया ग्रह हैं हमारे, सो उनका दान आप कहाँ करोगे। राहु का आप दान करोगे सैटरडे का, सैटरडे का ही दिन उनके लिए पड़ता है, वो आप शनि में या हनुमान जी के लिए करोगे। और अगर आप केतु का दान, केतु की दशा चल रही है बच्चे की, सो आप वो करोगे ट्यूसडे को, और वो भी हनुमान जी को करते हैं। सो आपने एक तो दशा देखनी है बच्चे की जब बच्चा पैदा होता है, और सिर्फ आपने नामाक्षर निकालना है, और उसके बाद अगर भगवान की कृपा बनी हुई है और बच्चे की हेल्थ बिल्कुल सही है, तो आपको हॉरोस्कोप की ज़्यादा स्टडी करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हॉरोस्कोप को संभाल देना है। दान दक्षिणा की लिस्ट आपको गूगल से भी मिल जाएगी, या जिस भी पंडित को आप दिखा रहे हो आप उनसे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू सी द दशा एंड दैट्स इट। उसके बाद आपने सिर्फ बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन वाले दिन उस हॉरोस्कोप को निकालना है, मंदिर में रखना है, पूजा करनी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट आस्क फॉर द बेटर लाइफ फॉर योर चाइल्ड, जस्ट आस्क फॉर द हेल्दी लाइफ ऑफ योर चाइल्ड, दैट्स इट। जस्ट प्रे इट फॉर 1 day, उसके बाद उसको फिर से संभाल दो। मेरी नानी पता है क्या करती थी, आई हैव सीन दैट। सो वो क्या करती थी, उन्होंने हॉरोस्कोप बनवाए हुए थे हमारे, और उस हॉरोस्कोप के, जैसे पुराने जमाने में तो वो रोल वाले हॉरोस्कोप होते थे, जैसे अभी आजकल तो बुक की शेप में मिलते हैं, प्रिंट आउट्स मिलते हैं। सो पहले वो हॉरोस्कोप्स नहीं थे, पहले इट वाज लाइक दैट रोल थिंग, जिसको खोलो और वो पीछे से इतना लंबा सारा खुल जाता था। दोज वर द हॉरोस्कोप्स दैट टाइम। सो व्हाट आई हैव सीन माय नानी डूइंग इज दैट, कि वो रोल वाला हॉरोस्कोप था, उस रोल पे ना बहुत सारा कलेवा वो बांध दिया उन्होंने ना। सो कलेवा वो बांध दिया, एंड वो भी लाइक मीटर्स एंड मीटर्स लॉन्ग, और उस कलेवा को भी वो उसके साथ रोल करके रैप करके रख दिया करते थे। एंड वो हर जन्मदिन पे जब वो निकालते थे, तो उस कलेवा में एक नॉट बांधते थे, एक गांठ लगाते थे। और आज की डेट में मैंने उनसे कभी नहीं पूछा, तो ये तो मुझे सिर्फ एक याद है, एक मेमोरी है कि मैंने उनको ये चीज़ करते हुए देखा है, कि लाइक कि वो एक गांठ मारते थे और गांठ मार के प्रेयर करके और फिर वो रखते थे। सो वो कलेवा की गांठें बाय एज वो इंक्रीज होती जाती थी, एंड एवरी ईयर दे यूज टू काउंट द, कि ठीक है ये हो गया। बच्चे की एज तो पता ही होती है सबको कि दिस इज 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। सो जब पेरेंट नहीं भी रहे, मेरी नानी नहीं भी रहे, सो देन उनकी लगाई हुई गांठें थी उसी में, तो दैट दैट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। और अब जब मैंने बड़े होकर, मैंने खुद ने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, तो हमारे में मैंने ये पढ़ा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नॉट्स, कि गांठ मारना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपने कई बार सुना होगा, एक नॉर्मल सेइंग है, सेइंग तो नहीं कहूंगी, आपने कहीं में सुना होगा लैंग्वेज में, किसी ने मेरा काम बांध दिया है। किसी किसी का अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा, किसी ने मेरी कोख बांध दी है। हम कई कथाएं भी पढ़ते हैं, जो हम व्रत कथाएं पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि काम बांध दिया। जब हम वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ते हैं, जब हम अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, तो अहोई अष्टमी का व्रत, जिसके जो भी फेमिलियर हो यहाँ पे, आपने सुना होगा कि कोख बांध दी, कोख बांध दी कि लाइक आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आप कंसेप्शन नहीं कर पा रहे। सो बांधना इज अगेन गांठ। सो गांठ बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आप प्रेयर करते टाइम, किसी भी टाइप की प्रेयर करते टाइम,
अगर आप एक गांठ लगा देते हो किसी भी धागे में, और अगर आप वो धागा गले में पहनते हो, अभी मैं एक और एक्सप्लेन करूंगी आपको, नॉट का मेरे मन में आ गया है, and I'll keep a check on the time also, because when I'm in the flow I just keep on talking and I forget how much is the time. So this session is till 6 o'clock and I'll try to give you as much as information in this session as much as possible. I'll try my level best. Okay. सो आप जब गांठ मारते हो और जब प्रेयर करते हो ना, उसको हम कहते हैं नॉट प्रेयर। नॉट प्रेयर कि आपने नॉट कर दिया ना तो वो चीज़ बंध गई उसमें। जब हम बच्चे को काली नज़र का, उसकी नज़र का धागा पहनाते हैं काले रंग का, तो आपने देखा होगा कई बार उसमें भी गांठें लगी रहती हैं। सो गांठ इज़ द ब्लेसिंग्स, जिसने भी उसको बनाया है, जिस इंटेंशन से बनाया है, माँ बना रही है, नानी दादी बना रही है, या कोई भी घर की बुजुर्ग महिला जिसकी अच्छी इंटेंशन है वो बना रही है, सो दैट इज़ द एनर्जी जो उसको ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रही है, और वो बच्चा हमेशा उसको कैरी कर रहा है। एंड द सेम एनर्जी जो मेरी नानी करती थी, शायद वो हमारी अच्छी प्रेयर के लिए, हमारी अच्छी लाइफ के लिए, हमारी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए वो उसमें गांठ लगाती होंगी। और वो एक गांठ एक रिचुअल जैसा बन गया कि उससे पता भी चल जाता है कि इतने बर्थडेज निकल चुके हैं, और दूसरा के बच्चे को ब्लेसिंग्स भी मिल जाती हैं, और वो ब्लेसिंग्स परमानेंटली आपके हॉरोस्कोप के साथ अटैच हो जाती हैं। सो इवन पहले ज़माने में रोल वाला हॉरोस्कोप था, लेकिन अगर आज के ज़माने में बुक वाला भी है तो उसको भी आप रैप करके रख सकते हो। मतलब दिस इज़ वन डायरी विच आई ऑलवेज कैरी। सो इस डायरी में अगर बच्चे का हॉरोस्कोप इस तरह से है तो आप उसको टोटल रोटेट करके आप रख सकते हो, एंड देन you just can open it like a horoscope, and then open it in the front of God, and then pray, and then just knot it when you are just keeping it back. So this is what will you do with the horoscope when the, हाँ, when the birthday comes। उसके बाद में हमें हॉरोस्कोप नहीं यूज़ करना। उसके बाद हमें हॉरोस्कोप कब यूज़ करना है? हेल्थ इशू इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चों का हॉरोस्कोप या कुंडली देखनी चाहिए, बट आई ऑलवेज प्रे कि ऐसा इशू किसी के साथ नहीं आया, और कुंडली हमको कम से कम 12 साल तक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको पैक्ड ही रहने दो, बच्चे की कुंडली को पैक्ड ही रहने दो। अब 12 साल के बाद क्या करना है? जब हेल्थ इश्यूज आते हैं तो आप प्लीज़ गाइडेंस ले लीजिए। ऑफ कोर्स मेडिकल गाइडेंस के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, बिकॉज वी हैव दिस स्पेशल स्ट्रीम ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हम मेडिकली एस्ट्रोलॉजी की हमारी एक स्ट्रीम है, और उसमें हम काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है। एंड अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस, कई बार किसी भी तरह का आपको बताया गया दान, आपको बताया गया पूजा किसी के हाथ से हो सकता है, पिता को करना हो सकता है माता को करना हो सकता है नानी दादी को हो सकता है कि कोई कमिंग फ्रॉम पास्ट दे समथिंग लाइक दैट, कमिंग फ्रॉम पास्ट, या कोई इविल आई, ये सब कुछ आपकी बच्चे की कुंडली से या किसी भी जातक या जाति का इंसान की कुंडली से, मेल फीमेल की कुंडली से वो चीज़ पता लग जाती है। सो उस टाइम पे जब आप मेडिकल गाइडेंस के लिए जा रहे हो तो साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के लिए भी ज़रूर जाओ, बिकॉज जब दो तरह की एनर्जीज मिलके काम करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। और उसके बीच में आपको एक और चीज़ दे देती हूँ, कुंडली नहीं दिखानी तो पेरेंट्स को उस बीच में क्या करना है। नॉर्मली जब हमने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो हमारी उम्र होती है, हमारी जो एज है, उसमें से ये मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि 12 साल तक की जो उम्र है वो हमारी अपनी नहीं होती। 12 साल तक की हमारी पेरेंट्स की दी गई होती है। 0 to 6 year इज यू आर वॉट यू आर गेटिंग इज गिवन बाय योर मदर। वो आप अपने मदर के कर्मास भोग रहे हो, क्योंकि आपको अगर कुछ भी होएगा ना तो सबसे ज़्यादा दुखी आपकी मदर होती हैं। सो वो कर्मास जो है वो आप अपने मदर के भोग रहे होते हो। 6 to 12 आप अपने फादर के भोग रहे होते हो, कि उसमें अगर आपके फादर से जाने अनजाने में, मदर से जाने अनजाने में, कभी भी किसी भी टाइम में, हम जैसे जन्म की बात करते हैं, हम री इनकारनेशन की बात करते हैं, तो उनसे कभी भी कोई गलती हुई हो, सो या थैंक्स फॉर सो मेनी लव्स एंड किसेस, आई लव यू ऑल। सो उनसे कभी भी कोई गलती हुई हो तो वो हमको भुगतनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे थ्रू हमारे पेरेंट्स भुगत रहे होते हैं। एंड 0 to 12 तक बच्चा अपने खुद के कर्म बनाता है, अपने खुद के वो एक्यूमुलेट करता है कर्मा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 0 to 6 years जो भी मदर्स वॉच कर रही हैं और उनके बच्चे अगर 0 to 6 years में हैं, तो सिंपल आप रोज़ की प्रेयर में एक लाइन ज़रूर कहो कि हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में करे गए किसी भी गलती का, किसी भी तरह का कोई असर या किसी भी तरह का कोई रिजल्ट मेरे बच्चे को नहीं मिले। और ये 6 to 12 तक यही सेम प्रेयर बच्चे के फादर करें। वैसे तो 0 to 12 तक दोनों करें और हमेशा करें, वो कोई बात नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ 0 to 6 तक ही करना है और 6 to 12 तक ही करना है। हमेशा करें इस प्रेयर को, क्योंकि आप एक फैमिली में बॉन्डेड हैं, आपके चार्ट्स भी कनेक्टेड होते हैं, हम सबके एक फैमिली के चार्ट्स हॉरोस्कोप्स भी कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू टिल
द चाइल्ड इज 12 years old, और उसके बाद 12 साल तक वो अपने कर्मास उस पर्टिकुलर लाइफ के बनाता है और फिर उसको इंजॉय करना शुरू करता है 12 ऑनवर्ड्स। ओके। सो अब 12 के बाद जब हमारे को हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें तब पड़ती है जब हमें ये देखना है कि बच्चे को किस स्ट्रीम में डालना है, किस टाइप की एजुकेशन में डालना है। यहाँ मेरा ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने जिस स्ट्रीम में एजुकेशन करी मैं वो प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करती। तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एनर्जी और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट चला जाता है वो वाली एजुकेशन में जिसको हमने यूज़ ही नहीं करना, इस्तेमाल ही नहीं करना फ्यूचर में। सो इट इज़ बेटर कि आप सही टाइम पे गाइडेंस लें, आपको ये पता चल जाए कि आपके बच्चे ने कहाँ पे करियर बनाना है, किस टाइप की नौकरी करनी है या किस टाइप का बिजनेस करना है, आप उसी स्ट्रीम में उसको एजुकेशन करवाओ। राइट, लेट मी जस्ट हैव वाटर। थैंक यू फॉर गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट्स। आई लव ऑल दिस। And there's no power over here, so there's like little scarcity of light also, and if you guys can see I'm sweating, which is okay, but I'm loving it with you. Okay, so now the thing is this that I was telling you कि उसके बाद में आपने बच्चे का करियर डिसीजन के लिए कि करियर बच्चा जहाँ पे बनाएगा वहीं पे हमको उसको एजुकेशन करवानी है। उसके बाद जब हम कुंडली खोलेंगे तो हम यही चीज़ देख के खोलेंगे कि हाँ अब मुझे गाइडेंस चाहिए कि बच्चे को क्वालिफिकेशन क्या करवानी है, सो दैट द करियर इज ऑल्सो मेड इन द सेम डायरेक्शन। वेयर एवर द चाइल्ड इज स्पेंडिंग एनर्जी, यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑल्सो, एंड द चाइल्ड इज स्पेंडिंग हिज एनर्जी, टाइम एंड मनी, ऑल थ्री थिंग्स गो इन दैट डायरेक्शन। तो उसमें अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बच्चे के लिए ले लेते हैं कि कहाँ पे जाके इसका करियर बनना है, सो दैट कम्स वंडरफुल। तो दैट इज अनदर स्टेप वेयर यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है बच्चे का, दो इसमें ऑप्शंस आते हैं। इसमें दो मत हैं बेसिकली। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद शादी करनी है, कि चलो पढ़ाई हो गई अब शादी देखते हैं, शादी हो जाएगा, या प्रोफेशन जो भी उसको जॉब करनी है या कुछ भी करना है तो वो उसके बाद में देखते हैं। सो नाउ द थिंक व्हाट कम्स फर्स्ट, इधर द मैरिज कम्स फर्स्ट और इधर द सेटलिंग डाउन इन करियर दैट कम्स फर्स्ट। तो आजकल लोगों की अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले ज़माने में होता था कि हाँ पढ़ाई हो गई अब शादी कर दो, स्पेशली जातिका यानी कि फीमेल के केस में ये होता था कि पढ़ाई कर ली, जो जॉब तो जब मिल जाएगी जहाँ पे हस्बैंड होंगे वहां पे नौकरी करेंगे। दैट यूज टू हैपन। सेम अप्रोच इज लाइक ऑल ओवर इंडिया आई थिंक। सो नाउ द पीपल आर चेंजिंग। आई विल टेक माई वर्ड्स बैक इफ देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी चेंज्ड। Aarti Gautam, I'll take your question. I have just read it and it has scrolled up. So, though it is this video is through First Cry Parenting, but even if I am not able to answer this in this video, I will revert to you and I'll take your question, Aarti Gautam. If you if I'm not able to find this message later, so please I request you to post that on my page in the message, personal message. I will revert to you, Aarti Gautam. Your name is written in my diary. Okay, so yeah, where was I? I was telling you कि उसके बाद हम शादी के लिए स्पाउस के लिए देखना शुरू करते हैं बच्चे का, कि बच्चे की सेटलमेंट मैरिज में कैसी रहेगी, कैसा उसका स्पाउस रहेगा, कहाँ उसकी सेटलमेंट होगी, और जो उसका स्पाउस होगा उसकी पेरेंट्स से बनेगी कि नहीं बनेगी। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू एवरी पेरेंट्स माइंड कि शादी जो होती है ना, वो शादी दो इंडिविजुअल्स में तो होती ही है, उसके अलावा दो फैमिलीज में भी होती है। एंड इट इज़ रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट to see that how the connection is going to be. And then again the astrology plays a very very major role, because astrology actually can guide you not only about the जो पंडित नॉर्मली मिला के देते हैं ना, गुण मिलान, 36 गुण में से गुण मिला लो और पता चल जाएगा कि कितना कंपैटिबिलिटी है, कितना क्या है। सो वो चीज़ तो है ही, गुण मिलाने से आपको पता, तो गुण क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसमें कितने गुण हैं, किसमें कितने अवगुण हैं। सो वो चीज़ वही गुण होते हैं। सो अगर हम बात करें कि गुण मिलान में आपके गुण मिल रहे हैं और गुण अगर अच्छे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मेरा एक सजेशन और आता है कि अपार्ट फ्रॉम गुण मिलान यू ऑल्सो शुड सी द इंडिविजुअल चार्ट कि वो इंसान अपने आप इंडिविजुअली वो कैसा है। गुण मिल गए, हो सकता है गुण तो बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन वो इंडिविजुअली उसकी नेचर कैसी है। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ही गुस्से वाला हो, उधर से वो बच्चा भी बहुत गुस्से वाला हो, दूसरा वाला बच्चा भी, क्योंकि गुण मिल रहे हैं। गुण मिल रहे हैं तो सारे गुण भी मिल रहे हैं, अब गुण भी मिल रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन।
तो इसलिए एक बार आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द गुड मैचिंग, डू डेफिनेटली चेक आउट द सेपरेटली चेक आउट द हॉरोस्कोप, दैट हाउ इज द हॉरोस्कोप विद द अदर पर्सन, कि वो कैसा है। क्योंकि आपका बच्चा है, आप चाहोगे कि वो खुश रहे। दूसरा, आप ये भी चाहोगे कि उसका जो स्पाउस आए वो भी आपके साथ अच्छे से रहे। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट टाइम कि जब आपको हॉरोस्कोप चेक करवाने चाहिए। सो वन इज द टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ। Second is the time, if there is no health issue, just keep it and don't use it unless and until it is a birthday, then pray for the horoscope and the pray to the god and pray to the planets also. थर्ड, जब आपको करियर बच्चे का बनाना है, आपको उसको एजुकेशन में चूज करवाना है, तब आपका हॉरोस्कोप रोल प्ले करेगा। फोर्थ, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में जब उसकी शादी की बात आएगी तब आपका हॉरोस्कोप रोल प्ले करेगा। फिफ्थ, कि अब हमको क्या करना है, अब एक बार शादी भी हो गई और जॉब भी करनी शुरू कर दी, करियर भी सेट हो गया, अब होता है कि आगे उसके बच्चे या आगे उसकी और करियर एस्टेब्लिशमेंट के जॉब शुरू कर दी, अब और क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इंसान कभी रुकता नहीं है, हमको और ना कुछ चाहिए होता है। अब ये मिल गया, हाँ, अब ये नेक्स्ट चाहिए, अब ये मिल गया, अब ये नेक्स्ट चाहिए। सो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या और क्या हो सकता है। सो उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनकम कितनी आएगी, प्रोफेशन तो पता चल गया कि मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे ये काम करना है, ये मुझे सूट करेगा, अब मैं अपनी इनकम को कैसे ग्रो करूं। सो वो वाली गाइडेंस। सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती जाएगी। एंड उसके बाद देयर आर हंड्रेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन कि अगर बिजनेस करना है तो किसके साथ करना है, फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस, शादी करनी है कौन सी डायरेक्शन में करें, के, और अगर पढ़ने के लिए भेजना है कहीं पे तो कौन सा अच्छा ऑप्शन है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग, तो उसके बाद तो आते ही जाएंगे क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक बेसिकली हाउ यू कैन कॉन्शियसली पेरेंट योर चाइल्ड थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल, हाउ बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कीप ऑन गाइडिंग यू। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा 5 मिनट्स का और बोलूंगी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूंगी। करियर प्रोग्रेशन में अगर मैं आपको बताऊं कि आप सिंपली बीइंग अ पेरेंट आप कैसे समझ सकते हो कि मेरा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, तो आपको कैसे पता चलेगा। एक ना हिंदी की सेइंग है, मुझे याद है जब हमने स्कूल में पढ़ी थी, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात, के होनहार, कि जो बच्चा होनहार है उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये शायद बड़ा होके ऐसा करेगा, ये तो ऑलरेडी इस चीज़ में अच्छा है, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात, कि वो ऑलरेडी वो स्टैंड आउट करता है उस चीज़ में। सो नाउ द थिंग इज दिस कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा इस पर्टिकुलर चीज़ में स्टैंड आउट करता है। सो बीइंग अ पेरेंट, हाउ बेसिकली यू कैन सी दैट विदाउट गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर। सो लेट्स सी हाउ बेसिकली यू कैन लिटिल बिट वर्क ऑन इट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो। सो एज आई टोल्ड यू दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ 9 planets। आई नेम दोज प्लैनेट्स, मैंने आपको बताए 7 दिनों के नाम हफ्ते के, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको प्लैनेट्स बताए, उसके बाद मैंने आपको राहु केतु बताया। सो हर प्लैनेट की ना एक सिग्निफिकेंस होती है, और हर प्लैनेट से हमारे नेचर में एक ब्लेसिंग मिलती है। मैं ब्लेसिंग ही कहूँगी, बिकॉज अगर किसी भी टाइप की एनर्जी है, चाहे नेगेटिव है चाहे कैसी भी है, सो उसको अगर हम सही जगह पे डाइवर्ट कर दें तो हमारी वो एनर्जी ब्लेसिंग ही होती है। वी जस्ट हैव टू नो दैट दिस एनर्जी इज इनसाइड मी एंड यू हैव टू जस्ट डाइवर्ट इट इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपने अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया, सो यू कैन जस्ट actually count on any kind of energy as a blessing. That's up to you, that what you make out of it, negative or positive. So now coming to starting from the सूर्य, सन, जैसे मैंने आपको बताया संडे है आपका और सूर्य है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा, नेचर से ही आप जान जाएंगे कि उसका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, उसी नेचर के अकॉर्डिंग आप उसका प्रोफेशन चूज करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा है, तो कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझसे कोई पेरेंट बात कर रहे थे, कपल था, वीडियो कॉल ही चल रहा था, एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि मैम मेरी बेटी है तो 2.5 साल की, लेकिन और उनके पहले 2 बच्चे हैं पहले, और 2 बच्चे मतलब अच्छे हैं उनके, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी जो थर्ड डॉटर हुई है 2.5 साल की, सो वो मतलब मेरे 2 बच्चों ने ऐसा बिहेव करा ही नहीं, एंड 2.5 years पे भी वो इतना एग्रेसिव है, वो चीज़ें उठा के फेंकती है, उसको गुस्सा आ जाए एंड शी विल जस्ट थ्रो एनीथिंग एंड शी विल शाउट एंड थिंग्स लाइक। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम कई बार सोचते हैं ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, कि पेरेंट्स जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा ही होगा। इट डजंट वर्क दैट वे, क्योंकि हर बच्चा अपने पेरेंट्स, जो वो बनता है वो अपने पेरेंट्स से बनता है, अपनी सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से बनता है, और अपने हॉरोस्कोप, उसके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे पोजीशन है, वो वैसा बनता है। आपने देखा होगा आपके अपने भाई बहन भी होंगे, और सब भाई बहन डिफरेंट होंगे। इवन वी आर 3 sisters, वी ऑल 3 आर कम्प्लीटली डिफरेंट। आप
आप सोचोगे ही नहीं कि हम में से कुछ में गए। हाँ, शक्ल जरूर मिल जाती है बिकॉज ऑफ दैट जीन्स इनसाइड अस, बट अदरवाइज अगर आप बात करने में देखोगे तो हम में भी कुछ मैच नहीं करता है। सो तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, पेरेंट तो सबको सेम चीज सिखाते हैं, राइट? तो प्लैनेट्स आर एक्चुअली प्लेइंग अ रोल। सो आपको कैसे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का क्या प्लैनेट स्ट्रांग है? तो जो सन जिसका स्ट्रांग होगा वो बच्चा, आप उसको खेलते हुए देखोगे ना, छोटा भी होगा, 2.5 साल का 3 साल का बच्चा होगा, तो आप उसको खेलते हुए देखोगे ना ग्रुप में, उसमें हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। वो ही बता रहा होगा कि कौन सा गेम खेलना है, वो ही बता रहा होगा कि गेम के रूल्स क्या है, और वो ही बता रहा होगा कि कौन आउट है, चाहे वो छोटा होगा बाकी से एज में, बट वो रूल कर रहा होगा। बिकॉज सन, व्हाट इज सन? सन इज द रूलर्स, मतलब उससे बड़ा और कौन सा प्लैनेट है? सारे प्लैनेट्स उसी के आसपास घूम रहे होते हैं, राइट? सो सन जिसका स्ट्रांग होगा वो बच्चा हमेशा उसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज दिखेंगे। और इसी तरह से मून है। आपको मैं दोनों का कॉम्बिनेशन में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर किसी का सन और मून दोनों स्ट्रांग है तो आप 100% मान के चलो कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड करियर में होगा। हो सकता है कि कोई बहुत ही हाई लेवल की, हाई रैंकिंग की वो गवर्नमेंट जॉब करे, नहीं तो अदरवाइज जहां पे भी जॉब करेगा, इवन प्राइवेट करेगा या कहीं पर भी करेगा, अपना बिजनेस करेगा, सो ही विल बी एन अथॉरिटेटिव फिगर। वो अथॉरिटी में होगा, वो जो कहेगा वो सब लोग मानेंगे। मून क्या सिग्निफिकेटर है? माइंड का सिग्निफिकेटर है। जब माइंड का सिग्निफिकेटर है तो माइंड किसका अच्छा होता है? जिसका माइंड अपने वश में है। हमारा दिमाग हमसे क्या क्या नहीं करवा लेता। यू नो, एट टाइम्स हम सोचते भी हैं कि हमको ये चीज़ नहीं करनी है, बट माइंड, मन कर रहा है। मन, मन हम बोलते हैं बट कहता वो हमारा दिमाग ही है अल्टीमेटली। सो माइंड जिसका स्ट्रांग है, माइंड जिसका स्टेबल है, आपको वो पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ देखो, मान लो कि आप कहीं बाहर गए या कुछ गए एंड बच्चे का मन था बट उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ड्यू टू वट एवर, मतलब उसको क्या समझदारी थी या क्या उसने देखा या क्या समझा। तो जिसका अपना मन वश में है, जिसका अपना माइंड वश में है, सो उसका मून बहुत स्ट्रांग है। और मून स्ट्रांग होने से कुछ कुछ रेमेडीज भी हैं इन चीज़ों को स्ट्रांग करने की, बिकॉज अभी सारा कुछ नहीं बता पाऊंगी। अभी सिर्फ आपको एक जजमेंट्स बता रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे की नेचर पकड़ के आप जान सकते हो कि इस बच्चे का क्या प्लैनेट सही है। तो जिसका सन और मून स्ट्रांग है, सो आप ये मान के चलो कि वो बहुत ही अथॉरिटेटिव काम में जाएगा। और अगर आप उनके लिए प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशन भी आप उसी हिसाब से चूज कर सकते हैं कि जहाँ पे अथॉरिटी वाले काम उसको करने को मिले। आप उसको आईएएस की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, आप उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, आप उसको बिजनेस में भी एस्टेब्लिश होता है तो भी सन और मून से रिलेटेड काम के। मून इज बेसिकली सफेद चीजों का काम, एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, एनी काइंड ऑफ फैब्रिक्स, दे विल कम अंडर मून। सन के अंदर क्या आएगा? मेडिकेशंस और ये सब चीजें, सन के डॉक्टर बनने वाले लोग। सो ये सब सन और मून स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा मंगल, ट्यूसडे, संडे मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। लेट मी चेक ऑन द टाइम ऑल्सो, या वी स्टिल हैव टाइम। सो उसके बाद आता है हमारा ट्यूसडे। सो ट्यूसडे वाला जो बच्चा होगा जिसका मंगल स्ट्रांग होगा वो बच्चा बहुत ही अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव होगा यानी कि आपको हमेशा दिखेगा लड़ाई कर रहा है, यू नो, फटाफट से लड़ाई, मतलब उसको फिजिकली फाइट करने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे सहम जाते हैं, लड़ते नहीं है। तो जिस बच्चे का मंगल स्ट्रांग होगा वो बच्चा डरेगा किसी से भी नहीं, बी इट एनी वन, चाहे वो इंसान कितना भी लंबा तगड़ा चौड़ा कितना ज्यादा हो उससे, वो बच्चा नहीं डरेगा क्योंकि उसका मंगल स्ट्रांग है। सो मंगल गिव यू स्ट्रेंथ, मंगल इज हनुमान जी, यू नो। सो जिसका मंगल स्ट्रांग होगा वो बच्चा अग्रेसिव होगा। अब इसी अग्रेशन को अगर आप राइट एनर्जीज में डाल दो तो आप उसका करियर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बना सकते हो। उसको फुटबॉल में डाल दो, ठीक है, उसको किसी भी तरह की स्पोर्ट्स में डाल दो जहां पे उसका फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए उसका अग्रेशन चैनलाइज हो जाए। ठीक है, सो वो उन बच्चों के लिए है जो मार्स जिनका स्ट्रांग रहता है, राइट? और आप अगर स्पोर्ट्स में नहीं कर रहे हो तो आप उनको आर्मी में डाल सकते हो। सो द एनर्जी, द फिजिकल एनर्जी हैज टू बी टेकन आउट एंड हैज टू बी डायरेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप इस मंगल वाले स्ट्रांग बच्चे को अगर आप बैठ के कहोगे कि तुम सीए के एग्जाम दो, तो वो कभी नहीं कर पाएगा और फिर वो अपने घर वालों से और आसपास वालों से लड़ाइयाँ करेगा। So you have to see, you have to judge the energy of the child of or of anyone. Today we are talking about parenting, so we will talk about the child. But आपको you have to sense the energy and then you have to channelize the energy in the right direction. This is all parenting is all about. अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आपसे बेहतर बेहतरीन कोई पेरेंट है ही नहीं, राइट? सो आप ये देखो कि मेरे बच्चे में क्या एनर्जी है और मुझे उसको कहाँ पर लगाना है। ओके, सो नाउ द थिंग इज दिस कि उसके बाद आता है हमारा ट्यूसडे के बाद आता है हमारा वेंसडे। वेंसडे इज व्हाट? बुध। बुध इज व्हाट? मरकरी। अगर आपको ये देखना है, अगर आपका बच्चा ओरेशन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, पोएम रेसिटेशन में फर्स्ट प्राइज लेके आ रहा है, स्किट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है,
बात करने में फ़ोन उठाता है तो सबसे बहुत ही तहजीब से बात करता है, यानी कि स्पीच में अच्छा है। सो दैट मीन्स कि आपके बच्चे का मरकरी स्ट्रांग है। मरकरी स्ट्रांग होने से बच्चे को अच्छी स्पीच मिलेगी, मधुर वाणी मिलेगी, जिससे बात करेगा बहुत अच्छे से बात करेगा, जिससे मिलेगा बहुत अच्छे से मिलेगा। लाइक बिहेवियर इज समथिंग डिफरेंट, बट वो बात बहुत अच्छे से करेगा। एंड एट द सेम टाइम वो बच्चा देखने में भी अच्छा होगा। तो आप उसको या तो, अगर हम मरकरी और वीनस, वीनस की यहाँ पे बात करूंगी, अगर आपका वीनस स्ट्रांग है तो आप क्रिएटिव हो बहुत ज़्यादा। बच्चा बहुत पेंटिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, गाने गाएगा। गाना आता है, सिंगिंग आता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड वीनस। सो अगर आपका वीनस स्ट्रांग है, आप बहुत ही क्रिएटिव हो। अगर आपका मरकरी स्ट्रांग है तो आपकी स्पीच बहुत क्रिएटिव है। सो जिसकी स्पीच क्रिएटिव है वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे किसी भी काम में जहाँ पे बोलने का काम है, पब्लिक रिलेशंस का काम है, आप उसको लॉयर बना सकते हो। So all these things come from Mercury. Mercury also gives you this journalism, and these people who are reporting news channels, and these anchors, they all come with a good Mercury. So वो Mercury जब आप जज करोगे कि हाँ मेरे बच्चे की स्पीच अच्छी है, तो तब आप समझ जाओ कि उसका Mercury अच्छा है और आपको उसी लाइन में उसका प्रोफेशन बनाना है। देन कमिंग टू थर्सडे, विच इज बृहस्पति, एंड बृहस्पति इज व्हाट? जुपिटर। बच्चे का जुपिटर अगर स्ट्रांग होगा तो आप देखोगे कि बच्चा बहुत ही संयम वाला होगा, ऑब्जर्वर होगा। कोई कुछ भी काम कर रहा है वो चुपचाप बैठ के उसको देखेगा और चुपचाप बैठ के उसको सीखेगा। सो दैट मीन्स दैट द चाइल्ड हैज अ स्ट्रांग जुपिटर। जिनका स्ट्रांग जुपिटर होता है, विदाउट गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर, यू कैन एक्चुअली मेक द करियर ऑफ योर चाइल्ड इन टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि वो सीखने में भी अच्छे हैं और सिखाने में भी अच्छे हैं। टीचिंग हो गया, किसी भी टाइप का ट्रेनिंग हो गया, ये जुपिटर को बहुत सूट करता है। सो अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही ऑब्जर्वर काइंड का है, चुपचाप बैठ के देखता है, समझता है चीज़ों को, सो उसको वो चीज़ जिसमें भी उसका इंक्लिनेशन है, हो सकता है टीचिंग में हो, सब्जेक्ट की टीचिंग में हो, जिस भी चीज़ को कोई, क्योंकि एक ही प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होता है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स कि जो स्ट्रांग होंगे, और उसके कॉम्बिनेशन में आप टीचिंग करनी है या ट्रेनिंग करनी है, पर किस चीज़ की करनी है, दैट यू विल हैव टू सी दैट दे व्हाट अदर प्लैनेट्स आर स्ट्रांग, एंड देन यू विल डिसाइड द करियर। नाउ कमिंग टू फ्राइडे, शुक्र पे आ रही हूँ। शुक्र मैंने जैसे आपको बताया मरकरी के साथ अटैच करके। सो शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी, ब्यूटी। अगर आपने कुछ भी ब्यूटी से रिलेटेड करना है एंड लग्जरी से रिलेटेड करना है, क्रिएटिव करना है, जितने फिल्म स्टार्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीनस। तो आप समझ जाओ कि मेरे बच्चे को तो यही काम करना है, क्रिएटिविटी का काम करना है, फिर उसको उस लाइन में जाने दो। कई बार क्या होता है कि कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव जिसके पेरेंट हैं और उनका बच्चा क्रिएटिव है, तो वो सोचते हैं कि अरे इसको तो मेरे प्रोफेशन में जाना था, बट ही इज और शी इज मोर इंक्लाइन टू दिस क्रिएटिव फील्ड, गाने गा रहे हैं, या इनका तो इसी में ही रुचि है, प्लेज में, एक्टिंग में बहुत रुचि है, तो मुझे नहीं चाहिए। सो प्लीज गिव दैट लिबर्टी टू योर चाइल्ड कि जिस चीज में वो अच्छे हैं उनको उसी चीज में जाने दो। नाउ कमिंग टू सैटर्न। अब सैटर्न का क्या प्रोफेशन होगा? सब सोचेंगे कि सैटर्न हमारे को क्या ऐसी चीज देता है। सो ऑल द मशीनरी, राइट, ऑल द मशीनरी, इट कम्स फ्रॉम सैटर्न। ये सैटर्न से ही आता है। आपके बच्चे को अगर टेक्निक आप देखो, हमेशा वो पेज कसता रहता है बैठ के, कुछ अपने टॉयज जिसको मिले उसको खोल दिया, खोल के वापस जोड़ दिया। बच्चा ये सब कर रहा है तो समझ लो कि उसको इंजीनियर बन रहा है और उसका सैटर्न स्ट्रांग है। एंड राहु केतु, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेंशंस, क्योंकि ये ग्रह नहीं होते हुए भी ग्रह हैं। जस्ट इमेजिन कि प्लैनेट्स 9 ही है, राहु केतु का कहीं पे कोई नाम नहीं है। एस्ट्रोनॉमी में, ज्योग्राफी में कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा कि राहु केतु नाम की कोई चीज है। फिर भी हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको मान के बैठे हुए हैं। ग्रह हैं ही नहीं, पर फिर भी ग्रह बने हुए हैं, प्लैनेट्स। टोटल एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन देम। वी आर टॉकिंग अबाउट 9 प्लैनेट्स, बट राहु केतु आर नॉट प्लैनेट्स, बट वी आर काउंटिंग देम एज प्लैनेट्स। सो जस्ट इमेजिन कि क्या टेंडेंसी होगी उनकी। राहु केतु आर ऑलवेज गिविंग इन्वेंशंस, कि जो बच्चे नई नई चीजें करते रहते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, सो वो राहु केतु से आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करते हैं, सो वो राहु केतु से आते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है। So this was all about planets, and without going to an astrologer, just by judging your child, you actually can see that what my child is up to in future. वो future में क्या करने वाला है, या क्या करेगा, या क्या करेगी, क्या प्रोफेशन उसके लिए सही रहेगा। So ये आप जान जाओगे अपने बच्चे का बिहेवियर देखते हुए। So this was all about parenting consciously with astrology, and this session was of course gifted to you by firstcry.com. And now, as just 15 minutes left, so I'll take some questions. Okay, so I'll just take some questions now. Keep on asking now, keep on firing the questions. We just have 15 minutes left for the session, and I'll be answering to as much as possible.
एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है विच इज फ्रॉम प्रवांगी वैश and Rupali Mehta Bhala. So I'm answering you pehle, Rupali, because your question is before Pravangi, and then I'm coming to you, Pravangi. So you have asked, these days means the day they are born. No, no. This is not the days they are born. That actually means the days. मैं डेज इसलिए बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली दिखाना आपको ये चाह रही हूँ कि ये किस प्लैनेट इनका कौन सा स्ट्रांग है. सो जिसका जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा बच्चे का, आपको वो ट्रेड्स देखने को मिलेंगे. ये उस दिन की बात नहीं है जिस दिन में ये बच्चे पैदा हुए हैं. ये सिर्फ डेज के साथ मैं आपको प्लैनेट्स को अटैच कर रही हूँ कि जो संडे है दैट इज रूल्ड बाय सन, दैट इज सन. एंड जो मंडे है दैट इज रूल्ड बाय मून. ट्यूसडे मार्स, वेंसडे मरकरी, थर्सडे जुपिटर, फ्राइडे दिस थिंग शुक्र, वीनस, सैटरडे इज सैटर्न, एंड राहु एंड केतु आर छाया ग्रह. राइट. सो ये इन दिनों के साथ मैं आपको प्लैनेट्स अटैच करके बता रही हूँ. सो यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है और जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं उसके थ्रू. एंड देन प्रवांगी, कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट एस्ट्रोलॉजर्स का कौन सा प्लैनेट सही होना चाहिए. सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर के बारे में मैंने आपको बताया. सो जुपिटर ऐसा प्लैनेट है जो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. राइट. कि उसने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई. बच्चा ऑब्जर्वर है और वो हम कुछ देखता रहता है और सीखता है. सो जुपिटर कौन थे? बृहस्पति कौन थे? गुरुओं के गुरु. तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात करोगे, एंड बिकॉज आर प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी पायस, हमारा बहुत ही पवित्र टाइप प्रोफेशन है. हम सबसे पहले हम किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते. जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका एक तरह से मेरा खुद का एक ओथ है. जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं ना कि किसी को भी टाइम जब होगा तो हम करेंगे. आजकल के डॉक्टर्स भी बदल गए हैं, आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स भी बदल गए हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट. लेकिन जुपिटर स्ट्रांग होना किसी भी एस्ट्रोलॉजर का सबसे पहले बड़ी ज़रूरत है. दूसरा, मरकरी स्ट्रांग होना, क्योंकि मरकरी से स्पीच आती है. अगर आपकी स्पीच अच्छी नहीं है तो आप बोल ही नहीं पाओगे. आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो वो आप लोगों को तक पहुंचा ही नहीं पाओगे. सो हैविंग अ गुड जुपिटर, अ स्ट्रांग जुपिटर, बिकॉज जुपिटर गिव यू ऑल द मॉरल वैल्यूज. सो हैविंग अ स्ट्रांग जुपिटर एंड हैविंग अ स्ट्रांग मरकरी gives you astrology. Okay. Okay, so now I'm taking more questions. Okay, scorpions are ruled by which planet? Scorpions are ruled by Mars, so that is why they are little aggressive in nature. And in my previous sessions which are there on my page, I have told there is a, I think there you can find a video. इसमें मैंने आपको बताया है स्कॉर्पियंस के बारे में. सो वो मार्स से रूल्ड होते हैं और वो थोड़े से बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बिकॉज कीट इज प्राणी नहीं कह सकते, एनिमल नहीं कह सकते. वर्ड हिंदी में कीट यूज होता है कि वो इतने अडेप्टेबल हैं कि पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं. बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर लेते हैं. So scorpions are ruled by Mars, but there are many many traits which are wonderful from scorpions, and yes, there are more traits to them also. जो लोग सुनने में आता है, आपने सुना होगा कि like they are very revengeous kind of people. So yes, all that is there because that is seen from, as you can see, a scorpion. So वो आगे से भी काट सकते हैं और पीछे से जो टेल होती है उससे भी आपको स्टिंग कर सकते हैं. So these are little traits जहाँ से आप देख के, साइन को देख के, उसके सिंबल को देख के थोड़ा सा स्कॉर्पियंस के बारे में आप समझ सकते हैं. Okay, Librans are ruled by which planet? So Librans are ruled by Shukra, that is Venus. That is why they are so fond of good things in their life, because शुक्र से हमेशा आपको लग्जरीज मिलती हैं, शुक्र से आप क्रिएटिव होते हो. So Librans are always the people who are fond of good things in my life, and they keep the balance. जो उसका है ना, उसका आप सिंबल देखते हो, that's the balance, balancing scale है, weighing scale is the symbol of Librans. सो हमेशा जब भी आप देखोगे, सो लिब्रन हमेशा हर चीज़ को वे करके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को वे करके और फिर वो उस चीज़ को बोलें, हर उस चीज़ को कहें. एंड येस, बिकॉज ऑफ वीनस दैट दे आर रियली दे आर फॉन्ड ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ. हाँ, कुछ बच्चे ऑलराउंडर लगते हैं, मीन्स सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होता है. उनके लिए क्या करें? सो दैट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग कि बच्चे सब चीज़ों में अच्छे हैं, तो दैट एक्चुअली कम्स आउट एज अ ब्लेसिंग. फिर आप बच्चे को अपनी मर्जी से चलने दो, जिस चीज़ में उसका मन करता है
जहाँ पे उसको एडमिशन मिलता है आगे जाके, सो वहाँ पे उस बच्चे को चलने दो। बिकॉज मैं जब आपसे बात कर रही थी तब मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि एक ही प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट, देयर आर 9 प्लैनेट्स, और उसके अलावा हमारी दशा भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर कंट्रीब्यूटिंग। सो अगर आपको बच्चा लग रहा है कि ऑलराउंडर है, सो डेफिनेटली उसके 4-5 प्लैनेट्स अच्छे होंगे, राइट। सो उसका जहाँ पे, जिस टाइम पे, जिस एज में, बिकॉज किस एज में क्या दशा चल रही है, उस एज में उसका जहाँ पे मन करता है, जस्ट सपोर्ट योर चाइल्ड देन, अगर बच्चा ऑलरेडी अच्छा है तो। सो दैट इज अ ब्लेसिंग, काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। ओके। यस यस, इफ योर सन इज एन वेरी क्रिएटिव एंड इज एन इंस्पायरिंग फोटोग्राफर, तो उनका वीनस डेफिनेटली अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, बिल्कुल। और राहु में से, केतु में से भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बिकॉज फोटोग्राफी इज ऑल्सो समथिंग जो क्रिएटिव से भी ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि वो, जैसे मैंने गाना है, मैंने गाना एक बार सीख लिया, सो उसके बाद जो राग है, जो राग अगर भैरवी है या वट एवर काइंड ऑफ राग इज देयर, सो वो चेंज नहीं होंगे। बट फोटोग्राफी इज समथिंग जो इट इज इवॉल्विंग एवरी मिनट, मतलब वो तो हर टाइम, आपने एक बार ऐसी फोटोग्राफ ली, अगली बार आप किसी और एंगल से लोगे, अगली बार किसी और एंगल से लोगे। सो वीनस के साथ साथ उनके राहु केतु भी जरूर अच्छे होंगे, बिकॉज फोटोग्राफी इज नॉट डिफाइंड कि ऐसा ही होता है, इट इज नॉट लाइक दैट। कि अगर मैं म्यूजिशियन की बात कर रही हूँ या मैं एक्टिंग की भी अगर बात करती हूँ, सो इट इज नॉट डिफाइंड, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इट। यू जस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग, आप अच्छे ही अच्छे होते जाते हो विद योर स्किल्स एंड विद योर एक्सपोजर। या you're welcome everyone, you can ask more questions, I'm just waiting for more questions to come. Okay, say something more, say something about Capricorns. So Capricorn is also a very interesting sign, and as again from the symbol you can see, आपने शायद दो तरह के सिंबल देखे होंगे। सिंबल काफी तरह के हैं, लेकिन जो ज्यादा है वो या तो आपको क्रोकोडाइल दिखता होगा या हाफ क्रोकोडाइल हाफ ह्यूमन दिखता होगा। एंड आई एम लिटरली नॉट गोइंग बाय द सिंबॉलिक, जो सिर्फ और सिर्फ लाइनों वाले सिंबल होते हैं उसके थ्रू नहीं जा रही हूँ। सो केप्रिकॉन इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हार्ड स्किन्ड, मतलब वो बहुत जल्दी अपने ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होने देते। अपने बारे में पहला सोचते हैं, जो कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल की दुनिया में अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, दे आर पीपल, केप्रिकॉन्स आर द पीपल हु प्रेफर सेल्फ लव, वो अपने आप को प्यार करते हैं, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज अपने आप को स्टेक पे रखना, किसी और के लिए कुछ करना, तो पता है क्या होता है बाद में, कि आप जिसके लिए कुछ कर रहे हो ना, अपने आप को स्टेक पे रख के कुछ टाइम बाद आप उसी इंसान को ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा। बी इट योर चिल्ड्रन ऑल्सो, चाहे कई बार बच्चों के लिए भी हमको अपनी रूटीन मोल्ड करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अरे मेरे बच्चे का इस टाइम सोने का टाइम है, मेरे बच्चे का इस टाइम उठने का टाइम है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम करते हैं बीइंग पेरेंट्स, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बाद में जाके बच्चे को ही सुनाते हैं हम कि अरे तुम्हारे लिए हमने ये छोड़ा, तुम्हारे लिए हमने वो छोड़ा, हमने ये नहीं करा, हमारे लाइफ में ये ऑप्शन आया था, ये नहीं करा। बिकॉज I've listened to many parents talking like that. So self-love, Capricorns are the people who are capable of loving themselves first, which is a wonderful, wonderful, wonderful thing. And everybody, मैंने एक बड़ी सुंदर सेइंग पढ़ी थी, किसी ने ना, किसी मॉम डॉटर ने डाली थी, दैट दे वर एक्सरसाइजिंग टुगेदर एंड सेइंग, द नीचे कैप्शन था ना, योर चाइल्ड शुड बी द रीजन, योर चाइल्ड शुड बी द रीजन। दे वर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजिंग, बट आप किसी भी टाइम में, किसी भी लाइफ के एरिया में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो द सेइंग वाज दैट योर चाइल्ड शुड बी द रीजन, नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना, तो आपका बच्चा उसका रीजन होना चाहिए, आपके लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए बाद में कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं करा, बिकॉज आई वॉज गिविंग यू सो मच ऑफ टाइम, आई डिडेंट केयर अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। बट योर चाइल्ड शुड बी द रीजन, कि जब वो तुमको देखे तो उसको अच्छा लगे कि येस, शी इज माई मॉम, और ही इज माई डैड, ही इज माई फादर। So take your child as an inspiration always. Okay, more questions. Okay, please tell about Geminis. Great. So Geminis are the people who, जैसे आपने साइन में देखा होगा, टू फेस या टू इंडिविजुअल्स आपको दिखते हैं Geminis में। So Geminis जो भी लोग होते हैं, they are capable of handling the two personalities. दे वेरी इजिली कैन हैंडल टू पर्सनैलिटीज, और आपको एट टाइम समझ में भी नहीं आएगा कि विच वन इज द एक्चुअल वन। सो दे आर दैट गुड, मतलब वो दोनों में कंप्लीटली कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रिटेंड कर रहे हैं, कई लोग होते हैं कि जो प्रिटेंड कर रहे हैं, एंड उसके बाद में जब आप देखोगे आप उनको, तो बहुत सक्षमता से वो दो पर्सनालिटीज को हैंडल कर लेते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रेड अबाउट जेमिनाइज, एंड येस, दे आर वेरी गुड विद देयर स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो, एंड दे आर वेरी गुड विद देयर कन्विंसिंग स्किल्स ऑल्सो। किसी को कन्विंस करना हो तो वो
कर लेते हैं। या संयम, आई रेड योर कमेंट, थैंक्स। All of you are asking about the signs. Ask about the parenting questions, which is okay. I can answer you. आप पूछते जाओ। लियो, सेजिटेरियस दोनों फायर साइंस हैं। लियो भी फायर साइन है, सेजिटेरियस भी फायर साइन है। जो आपका लियो है, मैं दोनों के लिए इकट्ठा ही बोल रही हूँ, दोनों सुन लो, भारती पॉल भी और मधु प्रिया विशाल भी, सो दोनों सुन लो। सो जो लियोज हैं, दे आर फायर साइंस एंड सेजिटेरियंस आर ऑल्सो फायर साइन। लियो इज रूल्ड बाय सन, सेजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर। सो जुपिटर से वो रूल करते हैं। और अगर जो लियो है, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय सन, सन हैज ओनली वन साइन टू रूल, मतलब सन का सिर्फ एक ही है, बाकी सबके ना सन और मून का एक एक राशि है, बाकी सबके पास दो दो राशि है। सैटर्न की दो है, मार्स की दो है, वीनस की दो है, जुपिटर की दो है, सबकी दो दो है। सो जो सन और मून की राशि है ना, तो सन कैसा है, लियो कैसा है, लायन एंड सन, सो कैसा होगा, वो लीडर ही होगा। ऑफ कोर्स दैट पर्सन हैज टू बी इन अ लीडिंग पोजीशन ओनली। और जहां पर भी उसकी वो लीडरशिप क्वालिटीज को दबाया जाएगा, वहां पे वो इंसान कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो डिसकंफर्ट में आ जाएगा उसी टाइम पे। तो दैट इज अबाउट लियोस, कि उनको लीडरशिप करना ही पसंद है। एंड देन कमिंग टू सेजिटेरियस, एज इट इज अ फायरी साइन एंड एज इट इज गिविंग बाय जुपिटर, सो इनका क्या रहता है, फायरी साइन तो है ही, एंड दे ऑलवेज कीप ऑन इवॉल्विंग। ये रोज अपने आप को कुछ नया देखना चाहते हैं, ऑटो पायलट मोड में नहीं चल सकते। रोज जैसी लाइफ है वैसे नहीं चल सकती है, सो वो इनके लिए मुश्किल हो जाता है। दे हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, इनके साथ ये चलता है सेजिटेरियस के साथ। ओके गाइज, सो नाउ यू आर आस्किंग मी अबाउट द साइंस ओनली। Virgos, okay, so Virgos is as you can say, you have seen के इसको मेडन साइन कहते हैं। दे आर वेरी शाई पीपल, बहुत ज़्यादा ये बहुत सोशल नहीं होते हैं। दे जस्ट कीप कि अपने साथ ही टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। दूसरा, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। अगर इनका जो भी कमरा है, जो इनका घर है, स्पेशली फीमेल्स and I've seen males also. So they are very, very particular about where to keep what stuff. So they are very, very particular people. And yes, they are also very, very straight people. Like कि जो बात है वो सीधी और स्पष्ट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। दिस इज अबाउट वर्गोज, आई एम टेलिंग यू। और इसके अलावा साथ साथ के बहुत ज़्यादा दिखावा करना इनको नहीं आता। दे आर नॉट द पीपल हु कीप ऑन प्रिटेंडिंग एंड सेइंग समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग एल्स। दे आर वेरी, वेरी स्ट्रेट पीपल, जो इनके मन में आएगा वो ये बात करेंगे। और सोशल थोड़े से कम होते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच इज देयर। Okay, so wonderful question, Pravangi. If you see that your child replicate your each and every action or your speech as well, good or bad, what should you do? What is the guidance? I love this question. बच्चों को जो हम सिखाते हैं, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बच्चों को जो हम सिखाते हैं और बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, हमको लगता है कि सिर्फ सिखाने का उनको यही एक मीडियम है। यही एक मीडियम नहीं होता है। हमने जो बच्चों को सिखाया, हमने जो बच्चों को पढ़ाया, वो सेकेंडरी है। बच्चे सीखते वो हैं जो वो देखते हैं, जो उनके सामने हो रहा है। बच्चे वही चीज़ अपने अंदर लेकर जाते हैं। अगर उनके पिता रोज़ सुबह बैठ के अखबार पढ़ते हैं, कुर्सी पे बैठ के जहाँ पर अखबार पढ़ते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे जब ना वो मदर फादर का ऐसे बच्चे गेम चलो घर घर खेलते हैं, सो वो क्या खेलना शुरू करेंगे, सबसे पहले जो फादर बनेगा वो कुर्सी पे बैठ के अखबार पढ़ने की ही एक्टिंग करेगा। और मदर क्या करेगी, अगर वो खाना बनाती है तो वो खाना बनाने की ही एक्टिंग करेगी। और जो मदर बाहर ऑफिस में जाके लैपटॉप में काम कर रही हैं या घर से काम कर रही हैं, वो जब मदर की एक्टिंग करेगा बच्चा, तो वो लैपटॉप लेके ही बैठेगा। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, हाँ बताओ कैसी हो, ये वो द वे वी टॉक। सो वो मदर को ही कॉपी करते हैं। बच्चों को जो हम स्पीच बोल के सिखा रहे हैं या जो लिख के सिखा रहे हैं, बच्चे वो नहीं सीखते। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। एंड दैट इज द एज, जो बचपन है ना, बायोलॉजिकली प्रूव्ड है कि वो जो एज है बचपन वाली, उसमें जितना बच्चे सीखते हैं उतना पूरी उम्र में नहीं सीखते हैं, जितना 2 या 4 साल में शुरू के में सीख जाते हैं। सो बी वेरी, वेरी कॉन्शियस वॉट यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, वॉट एग्जाम्पल यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। आप जो करोगे बच्चा वही करेगा, 110%। सो आप जो कर रहे हो बहुत ही कॉन्शियसली सोच के करो कि मेरा बच्चा मुझसे सीख रहा है। जो आप बोल रहे हो उसको भूल जाओ
कि बच्चे अच्छी बात करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, पेरेंट्स की हेल्प करवानी चाहिए, चीज़ों को ठिकाने पे लगना चाहिए, ये सब चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है अगर पेरेंट्स वो खुद वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, राइट? So, this was all from my side today, and it was really, really, really lovely to connect with all of you. And thank you all for participating in today's session. Please follow First Cry and First Cry Parenting for more such informative sessions and topics. And also, don't forget to help other moms by sharing this video. So, that was all for you today. Thanks for connecting, guys. I'm Priyanka Anil Thaka, logging off now. And it was really, really, really lovely to connect with all of you. And I met so many new people today, and it was awesome. I saw some wonderful questions. There are few names which are written with me, and I'll be waiting for those people to connect with me on my page. And I'll be giving you guidance because there was something which I saw and which I couldn't answer. And you were asking about your child. So you need an astrological guidance, not for everyone, just for the names which I have given in the video. So that's all for today, guys. And I really, really, really love you guys. Blessed be. Mwah. Bye.